Good morning, students. How are you? Fine. Today we will start our exercise 9.2. In this exercise, we will learn about the multiplication of different polynomials. So first of all, we will discuss the multiplication of two monomials. So first one is how to multiply two different monomials. Let us take some examples. 4 multiplied by 5. These are also monomial. How to multiply that? 4 5s are 20. Case 1. Case number 2. 4 multiplied to 3x. How to multiply? We multiply only these numerical values. So 4 3s are 12x. Case number 3rd. If we have 4x into 7x. Now how to multiply? We multiply numerical value 4 into 7, multiply x into x. So 7 4s are 28, multiply x square. So what does it becomes? 28x square. Clear? This is only the multiplication symbol. Next one, 3x square multiply 7y. How to multiply it? We multiply coefficients of each terms, each expressions, 3 into 7, and product of each variables into y. So what does it become? It becomes 3 7s are 21 into x square y. So 21 x square y. Okay. So how to frame this multiplication? Look at here. When we are solving all these multiplications, what rule we follow? जो हमारे पास गिवन फैक्टर्स हैं, हमें इनके फैक्टर्स जो गिवन कॉफिशिएंट्स हैं उनके कॉफिशिएंट्स, सो अलजेब्रिक फैक्टर्स और कॉफिशिएंट्स दोनों को सेपरेट करना होगा फॉर ईच अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस. सो हमारे पास दो मोनोमियल्स हैं, तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे? फाइंड ऑल कोएफिशिएंट्स ऑफ monomials and find product of them. Find product of them. Second case, we have to and identify algebraic factors and find their product. Clear? So we have to find जो हमारे coefficients है, इसमें coefficients क्या हैं? 3 and 7. So we have to find the product of 3 and 7. Then we have to identify the algebraic factors. So ये हमारे दोनों क्या है? Algebraic factors. इन दोनों का भी प्रोडक्ट, दोनों के प्रोडक्ट निकालने के बाद फिर हमें क्या करना है? इन दोनों का फाइनल प्रोडक्ट. Then find final product of above results.
इस रूल को अगर आप देखोगे तो आपको इजीनेस रहेगी टू सॉल्व और मल्टीप्लाई द रिजल्ट. क्लियर? नाउ लेट अस टेक another step of multiplication of three or more monomials. So in case of three or more monomials, the multiplication rule will be same. जैसा हमने अभी अभी किया है, similarly ही हम multiply करेंगे. Let us take some examples. 2x multiply 3y multiply 7. Now in all the case, इन तीनों में coefficients क्या क्या हैं? इसका coefficient 2, इसका 3, इसका 7. Then product of algebraic factors. इसका algebraic factor x, इसमें y, इसमें नहीं है. So 6 7s are 42. X y will be the result. Clear? Let us take another example. 4xy multiply 3x square y multiply 2xy square. इनको मल्टीप्लाई कीजिए. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू आइडेंटिफाई दी कोफिशिएंट्स. इनमें कोफिशिएंट क्या क्या है? 4, 3 and 2. नाउ वी हैव टू आइडेंटिफाई द वेरिएबल्स और algebraic factors. x y multiply x square y multiply x y square. 6 4s are 24 into x raised to power 1 plus 2 3 plus 1 4. अब आप यहां देखिए, whenever we are multiplying algebraic factors, the power of the each factor will be added. Now look at here, x raised to power यहां पर कितनी है? 1. यहां पर पावर कितनी है? 1. जहां कोई पावर नहीं लिखी होती वहां क्या अज्यूम करेंगे? पावर 1 है. सो x रेज़ टू पावर 1 यहां पर है, पावर 2 यहां पर है, पावर 1 यहां पर है. तो इन सभी पावर्स को आप ऐड कर दीजिए. कितना हो? 1 2 3 1 4. सो x रेज़ टू पावर 4. y रेज़ टू पावर कितनी है यहां पर? 1 प्लस 1 2 प्लस 2 4. सो आंसर हमारे पास क्या हो गया? 24 x रेज़ टू पावर 4 y रेज़ टू पावर 4. क्लियर? सपोज हमारे पास एक और एग्जांपल है, m रेज़ टू पावर 3 मल्टीप्लाई m रेज़ टू पावर 6 मल्टीप्लाई m रेज़ टू पावर 7. सो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? अब सभी के केवल मैंने सिंपल अलजेब्रिक आपके पास फैक्टर्स लिए गए, ओनली अलजेब्रिक फैक्टर. सबका कोएफिशिएंट क्या है? 1. सो नो नीड टू वेरीफाई द प्रोडक्ट ऑफ कोएफिशिएंट्स. तो हमें यहाँ पर केवल वेरिएबल्स के लिए ध्यान देना है, इसलिए एग्जांपल लिया है. सो इसकी पावर कितनी है? 3, इसकी पावर 6, इसकी पावर 7. तो हमारा आंसर जो बनेगा वो m रेज़ टू पावर, इनकी पावर्स को ऐड कर दीजिए. तो ये रूल होता है हमारे पास 16. आंसर हो गया m रेज़ टू पावर 16. सो एक रूल होता है a रेज़ टू पावर x रेज़ टू पावर a इंटू x रेज़ टू पावर b हो तो x रेज़ टू पावर होगी a प्लस b. इसे याद रखना है आपको, बिकॉज जब आप वेरिएबल का मल्टीप्लाई करोगे तो आपको ये रूल यूज में आएगा. नाउ कम टू द एक्सरसाइज 9.2. नाउ यू कैन सी क्वेश्चन नंबर 1. इन द क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ मोनोमियल्स. तुम्हारे पास फर्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है? फर्स्ट क्वेश्चन में गिवन है 7 इंटू 4 इंटू 7p, 4 इंटू 7p. यहां पर कोएफिशिएंट्स क्या क्या है? 4 and 7. सो मल्टीप्लाई देम. वेरिएबल्स क्या है? ओनली p. तो 7 4 जा 28p. आंसर क्या हो गया? 28p. पार्ट नंबर 2. -4 into -4p into 7p. Question number second में here
coefficients are -4 and 7 and variables are p into p. तो -28, 7 4 सा 28 और माइनस साइन एज इट इज. यहां पर दोनों की पावर है 1 1, सेम वेरिएबल है, सेम है, तो इनकी पावर क्या होंगी, ऐड हो जाएंगी, पावर 2. सो आंसर हो गया हमारे पास -28 रेज टू पावर 2. पार्ट नंबर थर्ड. In the part number third, the question is -4p into 7p cube. So हमारे पास क्वेश्चन क्या हो गया, 7 4 सा डायरेक्ट लिख देते हैं, नहीं आप मल्टीप्लाई कर दीजिए. सो क्या होगा इसमें क्वेश्चन, -4 इंटू 7 इंटू p इंटू p क्यूब. यहां पर हमारे पास होगा -28 इंटू पी रेज टू पावर 2 क्यूब. दोनों p एक जैसे हैं तो इनकी पावर्स ऐड हो जाएंगी, देन क्यूब. इन द पार्ट नंबर डी, यानी कि पार्ट नंबर फोर्थ, 4p क्यूब -3p, इनको मल्टीप्लाई करना है हमें. सो यहां से हम देखेंगे कॉफिशिएंट्स क्या क्या है, 4 इंटू -3 मल्टीप्लाई p क्यूब माइनस p क्यूब मल्टीप्लाई p. सो 4 3 जा 12, माइनस का 3 है तो -12 इंटू, दोनों p है, वेरिएबल सेम है, तो पावर ऐड होगी, 3 + 1 4. सो -12p रेज टू पावर 4 इज द आंसर. So now come to the next part. Question 1, part 5th. Part 5th में क्या गिवन है, 4p multiply to 0. आप 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कीजिए, we get the result 0. 0 को आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कीजिए, we get the result 0. बट स्टिल हमें प्रोसेस कैसे करना है, 4 इंटू 0 इंटू p. तो 4 इंटू 0 क्या हो गया, 0 इंटू p क्या होगा, 0. तो रिजल्ट विल बी 0. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 2. इन द क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल विथ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ मोनोमियल एज देयर लेंथ एंड ब्रेड्थ. सो इन द फर्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 1, so its length is equal to p and breadth is equal to q. Length and breadth both are given, so area is equal to what, p into q, length into breadth. so length यहां पर क्या है, so length है p, breadth है q. so answer will be p q. so come to the part number 2. in the part number 2, the edges are, length is equal to 10 m and breadth is 5 n. So area will be equal to length into breadth, it will be equal to 10 meter, sorry, so length into my breadth, it will be equal to 10 m into 5 n. so 10 into 5 into m into n, so 10 5s are 50 mn. now come to next part number 3rd. so length is given 20x square and breadth is given to be 5y square. now area is equal to length into breadth, 20x square into 5y square. 25 is 100
एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। रिजल्ट क्या बन गया इसका? 20x स्क्वायर वाई स्क्वायर। नाउ कम टू नेक्स्ट पार्ट। In the next part, the length is equal to 4x and breadth is equal to 3x square. So area is equal to 4 length into breadth. It will be equal to 4x into 3x square. So coefficients का multiplication into variables का multiplication. 4 3 जा 12 और x रेज टू पावर कितनी हो गई? दोनों कॉमन है, वेरिएबल्स कॉमन है, x एंड x पावर्स इनकी ऐड हो जाएंगी. सो 2 + 1 3. नेक्स्ट कम टू फिफ्थ पार्ट. सो 3m स्क्वायर 3mn, लेंथ हमारे पास कितनी है? 3mn और ब्रेड्थ हमारे पास है 4np. सो एरिया विल बी इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ 3mn 4np. सो 3 इंटू 4 कितना हो गया? 12 mn इंटू np. इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए. सो 3 4 जा 12 इंटू m सिंगल है तो दूसरा m नहीं है तो m का m, n दो बार आ रहे हैं तो m n रेज टू पावर 2, p कम्स ओनली वन टाइम तो p का p. सो आंसर हो गया 12mn स्क्वायर p. ओके. नाउ in question number 3 we have to complete this table of the products. जहां पर हमारे पास फर्स्ट पॉलिनोमियल मोनोमियल ये है और सेकंड मोनोमियल ये है. हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है. यहां पर हमारे पास गिवन है इन दोनों का प्रोडक्ट आएगा 4x स्क्वायर. कैसे आएगा देखो, 2 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 4x रेज टू पावर 1, इधर भी x की पावर 1. जब दोनों सेम वेरिएबल हो, तुमने आपको बताया था x की पावर a इंटू x की पावर b, मल्टीप्लाई करेंगे तो x की पावर a प्लस b, पावर ऐड हो जाएंगी तो इन दोनों की पावर 1 + 1 x की पावर 2. अब यहां मल्टीप्लाई कीजिए. सबसे पहले इस कोफिशिएंट को इसके कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कीजिए. 5 2 जा, सो 5 2 जा 10, माइनस का साइन है तो -10. x और x कितना हो गया? x स्क्वायर. सबसे पहले हम यहां से चल रहे हैं, इसे हम सभी से मल्टीप्लाई करेंगे. 2x को सबसे मल्टीप्लाई करना. 2x को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, 2 3 जा 6, x की पावर कितना होगा? यहाँ 1 यहाँ 2, 1 and 2 3. नेक्स्ट में क्या होगा? 2 4 जा 8, माइनस का 8, x की पावर 1 और 1 2 और y है 1, y की पावर 1. 7 2 जा 14, x की पावर कितना हो गया? 3y. नेक्स्ट में 9 2 जा 18 एंड x की पावर कितना हो गया? 3, y की पावर 2. इन द नेक्स्ट केस इसको मल्टीप्लाई कीजिए इन सभी से, इससे नहीं, इनसे. 5 2 जा 10, -10x स्क्वायर, 5 5 जा 25, xy दोनों डिफरेंट है तो सिंगल सिंगल आ जाएंगे. यहां पर क्या है? 5 3 जा 15, सो -15 x स्क्वायर y. नेक्स्ट में क्या है? माइनस माइनस प्लस, 5 4 जा 20 xy स्क्वायर. क्लियर. नाउ 7 5 जा 35 x स्क्वायर y स्क्वायर. यहां y, इसमें भी y है और इसमें भी y है तो y पावर 1, इधर भी पावर 1, दोनों ऐड होंगी तो y रेज़ टू पावर 2 और x स्क्वायर है तो एज इट इज. क्लियर. सो इन द नेक्स्ट वन 9 5 जा 45, बोथ आर ऑफ माइनस, सो मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव क्वांटिटी हो जाएगी. सो x स्क्वायर इस ओनली एक टर्म में आ रहा है तो x स्क्वायर एज इट इज. y दोनों में है तो y की पावर 2 एंड y की पावर 1 3, so y raised to power 3. So in the next one multiply 3x square to all of the monomials.
3x² को 2x से मल्टीप्लाई कीजिए, 3 2 6 x रेज टू पावर 3, 3 5 15 x रेज टू पावर 2 + 1 3, 3 3 9 x रेज टू पावर 4, तो 2 पावर यहां से है, 2 पावर यहां से है, 3 4 12 -12 x रेज टू पावर 3 y, इसमें मल्टीप्लाई कीजिए, 3 7 21 x रेज टू पावर, यहां पे 2 है, यहां पे भी 2 है, तो 2 2 4 और y सिंगल, 3 9 27 x रेज टू पावर, यहां पर 4, 2 यहां पर है, 2 यहां पर है, 4 एंड y स्क्वायर, y रेज टू पावर 2. Similarly in the next one, -4 into 2 -8 x raised to power 1 x raised to power 1 x raised to power 2 बन जाएगा, y as it is. यहां पर -5 और -4 मल्टीप्लाई करेंगे तो +20, x की पावर 1 यहां पर है, x की पावर 1 यहां पर है, तो x की पावर 2, y सिंगल है तो y की पावर as it is 1 है तो 1, -4 into 3 -12 x की पावर 1 और x की पावर 2 x की पावर 3 y. ओके, नेक्स्ट -4 को -4 से मल्टीप्लाई कीजिए, 16 x की पावर यहां पर 1, यहां भी x की पावर 1 x की पावर 2, यहां y की पावर 1 यहां y की पावर 2, तो यहां भी y की पावर 2. नेक्स्ट -4xy multiply to 7x²y, 4 7 28 -28 x raised to power 3, यहां पर 2 है, यहां पावर 1, जब पावर मेंशन नहीं हो वहां पावर हमेशा क्या कंसीडर की जाएंगी, 1. क्लियर, यहां पे भी पावर 1 अज्यूम की जाएंगी, तो यहां पर पावर होगी 3 और y की पावर यहां 1, यहां भी पावर 1, कितना हो गया, y की पावर 2. इन द नेक्स्ट वन, 9 4 36 9 4 36 x raised to power 3 and y raised to power 3. Now 7 2 14 x raised to power 3 y raised to power 1, 7 5 35 x raised to power 3 and y raised to power 1. ओके, सिमिलरली इसमें क्या होगा, 7 3 21 x रेज टू पावर यहां पर 2 यहां पर 2, 4 हो गई, y की पावर 1. नेक्स्ट 7 4 28 -28 x रेज टू पावर 1 और 2 3, y रेज टू पावर 1 and 1 2. नेक्स्ट वन, 7 7 49 x raised to power 2 x raised to power 2 x raised to power 4, y raised to power 1 and y raised to power 1 y raised to power 2, and 7 9 63 7 9 63 x raised to power 2, यहां भी x raised to power 2 x raised to power 4, y raised to power 1 y raised to power 2 y raised to power 3. Now next one, 9 2 18 -18 x raised to power 2 और x raised to power 1 x raised to power 3, यहां y raised to power 2 होगा. सिंपली मल्टीप्लिकेशन है, जैसे हमने सारे मल्टीप्लाई किए हैं ऐसे इसे भी करेंगे. यू हैव टू डू बाय योर सेल्फ. लास्ट जो कॉलम है वो अपने आप मल्टीप्लाई कीजिए. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ इन द क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द वॉल्यूम. फाइंड द वॉल्यूम, हमें वॉल्यूम फाइंड करनी है. यहां पर लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट गिवन है हमारे पास. फर्स्ट पार्ट में लेंथ कितनी है, फर्स्ट पार्ट में लेंथ हमारे पास है 5a, ब्रेड्थ हमारे पास कितनी है 3a² और हाइट हमारे पास 7a रेज़ टू पावर 4. तो यहां से वॉल्यूम कितना होगा, LBH, लेंथ ब्रेड्थ इनटू हाइट.
सो लेंथ कितनी है 5a और ब्रेड्थ हमारे पास कितनी है 3a स्क्वायर, हाइट हमारे पास 7a रेज़्ड टू पावर 4। सो इनको मल्टीप्लाई करते हैं, 5 3 जा 15, 15 7 जा 105, a रेज़्ड टू पावर यहाँ पे 1 2 3 और 4 7। सो इनका आंसर हो गया 105 into a raised to power 7. In the part number second, length is equal to 2p, breadth is equal to 4q, and height is equal to is what 8r. So volume is equal to LBH. So length is equal to 2p 4q into 8r. कितना वैल्यू आ गया 4 2 जा 8, 8 8 जा 64, PQR. Next, in the part number third, length is equal to x, y, breadth is equal to 2x square y, and height is equal to 2x square 2xy square. So volume is equal to length, breadth and height. So xy into 2x square y into 2xy square, 2 2 4। सबसे पहले कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई कर दीजिए, नेक्स्ट वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई कीजिए। यहाँ x की पावर 1 1 1 2 into 4, y raised to power 1 y raised to power 1 and यहाँ पर 2 y raised to power 4। Now next part number 4, length, breadth and height are given to be a, 2b and 3c. So its volume will be equal to LBH. So a, 2b, 3c, 3 2 are 6 ABC. Okay, so this is your question number 4. Now come to question number 5. Now question number 5, find the product. In the question number 5, in the first part we have to find the product of what, xy into yz into zx. Now यहाँ से x की पावर कितनी है 1, सबकी पावर कितनी है, अगर गिवन नहीं है तो सबकी पावर 1 है। सो x की पावर 1 and 1 2, y raised to power भी 2 और z की पावर भी कितनी होगी 2। In the second one we have to find the product of a minus a square and a cube. So what is the product of these? a raised to power माइनस कितनी बार आ रहा है 1 टाइम, तो माइनस आएगा साइन, a raised to power 1 2 and 3, टोटल a raised to power 6। इन तीनों को ऐड कर दीजिए पावर्स को। इन द नेक्स्ट वन, पार्ट नंबर थर्ड, we have to find the product of 2 into 4y into 8y square into 16y cube. So here coefficients are 2 into 4 8, 8 8 is 64 and 64 6 are 64 into 16, 64 into 16 कितना होगा 1024। x कोई नहीं है, y की पावर कितनी है यहाँ पर 1 2 3 2 3 5 and 1 6। So in the next one we have to find the product of
A, 2B, 3C and 6ABC. So we have to find the product. 3 2s are 6, 6 6 are 36. A raised to power 1 and 1, 2. B raised to power 1 and 1, 2. C raised to power 1 and 1, 2. So answer will be 36, A square, B square and C square. So now find the product of M into minus Mn into Mnp. So it will be equal to M raised to power 2, 3, power 1, 2 and 3. N raised to power 2, P raised to power 1. Minus comes how many times? One time, so minus भी आएगी. Clear? So this is your question number 5. Okay. Now complete your whole work and then send to me on my WhatsApp.